Good afternoon to one and all present here. Today, we all have assembled to attend a session on sensitization program on financial literacy and use of digital tools. We have with us Mr. Pratik Ganeriwal, who is a highly successful chartered accountant with excellent knowledge of financial reporting and accounting, possessing 11 years of experience. We welcome you, sir. Now, I would request our Honorable Principal Ma'am to present a bouquet to sir. He is presently working as manager in Coal India Limited. He is also the chairman of ICAI Dhanbad branch. I would now request sir to carry forward the session. Thank you. A very good afternoon to everyone. So the topic for the today, which ma'am recently told you, is about financial literacy and the use of digital interface. I think now we all are using this digital payments or digital interface. We all are using, and to use that digital interface, we have mobile in our hand. So I think everyone is well equipped with this technology. But what are the do's and what are the don'ts? We need to just remember it. So by going through the PPT, we will just get a gist of out of it, that what we need to do, what we not need to do, and there are many things which we already do, but we are not doing it in a systematic way. So I am just here to teach you something and to learn from you also. So don't take it as a class. This is a learning session for you as well as for me. So I think if the session is interactive, then we all can take away today's learning from here. So I will request everyone to be very interactive in this session. If you have any doubt at any point of time, please ask it. Don't take any of your queries to the home or thinking that we will ask to my friends or my colleague. So it's better to clear your doubt here itself. So with this, I am starting the session of today's. Till the PPT gets started, let us have some introduction or not an introduction. We will have a overview and what the today's program is all about. So our discussion, your deliberation will be in English as well as in Hindi. I don't think there is any problem in that. I think language should be that which can be easily communicated and which can only easily be understood by the other person. So this is important. So कुछ हम लोग financial planning करते हैं. So at what age हम लोग plan कर रहे हैं, that is very important. क्योंकि every person in their life need to plan for their future. I am right or wrong? But हमारा day to day काम इतना रहता है कि हम लोग अपने planning कर नहीं पाते हैं properly. कि क्या होता है, सुबह उठना है, स्कूल जाना है, स्कूल से
फिर वापस घर जाना है, घर के बाद बाकी जो घर के काम है वो सब करना है, फिर कल के लिए वापस तैयारी चालू कर देनी है, या होमवर्क ले या जो बच्चों की कॉपी है वो लेके जाना है, उसको करेक्शन करना है। तो जो भी काम रहती है, हम लोग डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम लोग या तो कल का सोचते हैं, उसके बाद परसों का नहीं सोच पाते हैं, कल तक का ही सोचते हैं। और अगर मैं ये बात बताऊं कि मैं आपको कल के बारे में सोचने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ 5 साल, 10 साल, 20 साल और 40-50 साल के बारे में सोचने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर इतने लंबे क्यों सोच रहे हैं, हम लोग क्यों सोचना है इतना लंबा, एवरीथिंग इज गुड। तो जब हम लोग फ्यूचर का सोचते हैं आफ्टर 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, क्योंकि हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि वी हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 75, 80, 90 ईयर्स और मे बी 100 ईयर्स। तो सर 100 ईयर्स कौन जीता है? तो टर्म इंश्योरेंस आप देखोगे 100 ईयर्स का भी देता है। क्यों देता है? बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि आप 100 ईयर्स तक जियोगे। तो इसलिए जो है देयर इज अ एक्सपेक्टेंसी दैट वी कैन लिव एट दैट स्टेज। तो ये हमारा जो लाइफ स्टेज प्लानिंग है वो इस तरह का है कि आपका यहाँ जो आपको ग्राफ दिख रहा होगा, एक तरफ आपकी इनकम है और नीचे में जो है दैट इज द अर्निंग लाइफ। आपकी जो लाइफ है वो कैसे, तो स्टार्टिंग की 25 ईयर्स तक तो हम पढ़ाई करते हैं, यही हमारा प्लेटफॉर्म है। मान लीजिए स्कूल में ही जो है हमारे, मान लीजिए जब तक हम लोग 12 नहीं कर रहे हैं तब तक 12 तक यहाँ है, फिर मे बी पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। तो 25 ईयर्स तक हम लोग ये पकड़ के चल रहे हैं, यू आर नॉट अर्निंग एट दैट स्टेज, ठीक है। लेकिन आफ्टर 25 ईयर्स योर लाइफ अर्निंग लाइफ स्टार्ट्स। तो व्हेन योर अर्निंग लाइफ स्टार्ट्स, सो व्हाट योर फर्स्ट प्लानिंग इज वी आर गेटिंग मैरिड। सो उस समय मैरिज का जो खर्चा अपना नहीं लगता है, मम्मी पापा दे देते हैं, तो दैट इज नॉट आर, मतलब पेन हमारा नहीं रहता है। लेकिन व्हेन योर एक्सपेंस कम, दैट इज योर फर्स्ट चाइल्ड, वो एक पर्टिकुलरली रहता है जहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर का चांसेस रहती है। सेकेंड चाइल्ड कार, होम, फर्स्ट चाइल्ड का कॉलेज मतलब पढ़ाई की फीस, फर्स्ट चाइल्ड का मैरिज, सेकेंड चाइल्ड का मैरिज, and after that you are retired. If you are retired, again no income, so you have to plan for that also. So ये एक समरी में हम लोग जान रहे हैं, पर सर आगे का और बताइए। तो अभी आगे हम लोग डीप में जाएंगे, ये हम लोग खाली ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये सब स्टेजेस हैं जिसके बारे में आपको जानना है। एक और चीज़ है इसमें कंटिजेंसी ये हो गई जो अनप्लैंड है। सर ऐसा भी होता है क्या? ऐसा आप लोगों के साथ कभी हुआ? कंटिजेंट कभी ऐसा हो गया कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं है कोई सिचुएशन के लिए, अचानक से देखे कोई झूठ मूठ का कोई खर्चा आ गया, वो भी बहुत बड़ा। तो ऐसा कुछ भी मेडिकल इशू, तो फिर भी हम लोग प्लान कर सकते हैं, उसके लिए मेडिकल प्रीमियम हम लोग ले सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो मे बी तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो मतलब प्लान्ड एंड अनप्लान्ड दोनों सिचुएशन के लिए वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। अब प्रिपेयर्ड कब से होना है? आज से। अगर आज से नहीं प्रिपेयर्ड हुए तो आपको ये समझना पड़ सकता है कि अगर हम लोग ये चीज़, यही स्टेप अगर 5 साल बाद लिए तो हमारे कितना फाइनेंशियल लॉस होगा। लॉस तो होगा ही, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कितना लॉस होगा वो हम लोग आगे पीपीटी में देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कि हम लोग कितना लॉस ले सकते हैं जस्ट आपका एक प्लानिंग, मतलब लेट प्लानिंग के चलते। So we are waiting for the PPT to start. Yes ma'am. तो वो भी जनरेटर ऑन करवाए मैम, उसमें जनरेटर ऑन है। लाइफ स्टेज प्लानिंग, देखिए हमारी लाइफ की स्टेज जो है, हमारा करियर जो है, एक अर्ली करियर जो हमने बात किया 20 to 25, मतलब 25 ईयर्स तक का जो है, उसमें हो सकता है हम व्हीकल कोई ले या कोई कंटिजेंसी फंड हमको रिक्वायरमेंट हो। हमारा मिड करियर जो है उसमें चिल्ड्रन का एजुकेशन हो, घर हो, कंटिजेंसी फंड की उस समय भी ज़रूरत है। जब हमारा प्राइम करियर चल रहा है उस समय चिल्ड्रन की मैरिज हो सकती है या कंटिजेंसी फंड उस समय भी हो सकता है। तो कंटिजेंसी फंड इज कॉमन फॉर every stage of life because you don't know when that contingency will arise. And post retirement, that is very important, that is your medical fund.
because you see after the age of 60 some complications in your health may arise, and at that time you will require some amount and maintaining lifestyle. It is said that after retirement आप अपने लाइफ के साथ मतलब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो उस समय भी अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिए तो फिर जिंदगी बोले ऐसे ही चल गया। तो इट्स बेटर कि आप अभी से कुछ प्लान कर लो ताकि उस समय जो है आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। What do you need for financial planning? अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमने सर फाइनेंशियल प्लानिंग तो बता दिए, लेकिन हमें फाइनेंशियल प्लान करते समय क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें जो ज़रूरत है वो अपने गोल्स को डिटरमाइन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सब यहाँ बैठे जितने लोग हैं सबकी गोल अलग हो सकती है। भले अगर हम लोग एक दूसरे को देखें तो दिखते सब एक जैसे हैं, सबकी रिक्वायरमेंट एक जैसी है, लेकिन अगर आप अपने गोल देखें तो सबके गोल अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि हमें जितनी फंड की रिक्वायरमेंट हो सकता है सामने वालों को उससे कम फंड की जरूरत हो या और कम की जरूरत हो। तो दिस मे बी द सिचुएशन। अडॉप्ट चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस एंड नीड्स, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस एंड नीड्स हमेशा चेंज होते रहती हैं। सेव मनी यू नीड टू अचीव योर गोल, हमें सेविंग जो है आज से ही करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हमें वो गोल चाहिए तो। प्रिपेयर अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज वही कंटिजेंसीज के लिए। प्रिपेयर फॉर रिटायरमेंट, मैनेज योर टैक्सेस, अगर हमें अपने टैक्सेस को मैनेज करना है तो उसके लिए क्या है ना, हमें जैसे बहुत लोग घर खरीदते हैं तो उससे क्या होता है इंटरेस्ट का कुछ बेनिफिट मिलता है, तो अभी जो टैक्सेस लग रहे हैं वो थोड़े कम लगेंगे। तो घर अभी से वो खरीद ले तो उनको लॉन्ग टर्म में जाके बेनिफिट होता है। और विद द सेंसिटिव डायरेक्शन, बेसिस ऑफ फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान का बेसिस क्या होता है? फाइनेंशियल प्लान का बेसिस होता है हम अभी कहाँ हैं, वेयर एम आई, मुझे कहाँ जाना है और यहाँ से वहाँ हम कैसे जाएंगे। तो ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है कि वेयर एम आई नाउ, वेयर डू आई वांट टू गो एंड हाउ डू आई गेट देयर टू देयर। तो ये एक ओवरऑल समरी था हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से। अब नाउ अगर हम लोग ये फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हमें कितने लोग की मदद चाहिए होगी, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस की मदद लेना है मुझे। अब हम लोग, क्योंकि इसके लिए हमें बैंक की जरूरत है। ऐसा कोई है जो कि जिसका कोई सेविंग अकाउंट नहीं है बैंक में? यहाँ पार्टिसिपेंट्स जितने हैं मतलब सबके हैं, इसका मतलब आप सब बैंक के कस्टमर हैं। यू ऑल आर दी कस्टमर्स ऑफ द बैंक। अब आगे जो मैं पूछ रहा हूँ हो सकता है उसमें किसी ना किसी के हाथ उठ जाए। ऐसा कोई है जो आज तक एफडी नहीं खुलाया? फिक्स्ड डिपॉजिट एक जन है, ठीक है। ऐसा कोई है सर जिसको एफडी के बारे में पता ही नहीं है, एफडी क्या होता है? सर फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको या तो टर्म डिपॉजिट भी बोलता है, ठीक है। तो एक बैंक क्या होता है ना, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपके बदले आपके पैसा को रखता है और उसका हिसाब किताब भी वही करता है। और फिर आपको जब चाहिए तो जाके बोल दीजिए भैया मेरा पैसा दीजिए, तो आपको दे भी देता है। तो ये आपका काम करता है। सर ये क्यों करता है? इसके लिए वो फीस भी लेता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ कुछ नहीं करता ना। अब बैंकिंग में क्या क्या चीज है? तो एक फिक्स्ड डिपॉजिट का जो बोले एफडी है। एफडी में क्या होता है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट मैंने बैंक को दिया, भाई 1 लाख रुपया मेरा रख, ये 5 साल के लिए तुम्हारे पास ही रहेगा और 5 साल बाद इसमें जो भी इनकम आएगा वो मुझे करके तुम 5 साल बाद दे देना। तो वो क्या है ना, उसकी इंटरेस्ट मुझे ज्यादा मिलती है फिक्स्ड डिपॉजिट में। तो सर क्या 5 साल से पहले मैं पैसा निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? कोई बताएगा? निकाल सकते हैं, हाँ, लेकिन उसमें कुछ पेनल्टी लेवी करती है बैंक, ठीक है। वो पेनल्टी लेवी करके आपको पैसा वापस मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे अगर आपके पास कोई ऐसा सरप्लस रुपया है जो आपको लगे मुझे 1 साल 2 साल 5 साल का काम नहीं है, तो आप उसको एफडी कर सकते हैं, ठीक है। सर एफडी में भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ये रेंज वेरी होता है बैंक टू बैंक। प्राइवेट बैंक में जाओगे ना तो आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा, लेकिन प्राइवेट बैंक का भाग जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो हाँ 6, अब उसमें ये भी आप कितने टर्म के लिए ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उसके ऊपर है, तो इट में वेरी। तो आप जब भी एफडी कराने जा रहे हैं बैंक से पूछ लीजिए भैया कितने दिन का कितना इंटरेस्ट है। हो सकता है अगर आप 1 दिन कम का कराए ना
तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाए, एक दिन ज्यादा का कराए तो इंटरेस्ट कम मिल जाए, क्योंकि उनका कुछ अलग अलग स्लॉट है। अभी 555 डेज करके आया था, 777 डेज करके आया था, उसमें इंटरेस्ट 7.5 भी मिल रहा था। तो अलग अलग। फिर एक है डिपॉजिट इंश्योरेंस। हाँ, इसमें क्या होता है ना, अगर हम लोग कोई बैंक में पैसा रखते हैं और बैंक जो है गलती से मान लीजिए लिक्विडेट हो गई, तो उसमें क्या होगा ना, आपको 5 लाख रुपया तक का इंश्योरेंस जो है वो गवर्नमेंट देता है, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। मतलब 5 लाख का एफडी किए तो 5 लाख का तक ही देगा, बाकी इंटरेस्ट का रुपया आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 2 लाख रुपया का एफडी करते हैं और वो इंटरेस्ट के साथ 3 लाख रुपया है, तो पूरा 3 लाख रुपया बैंक आपको गवर्नमेंट ये देगा। तो अपना इंश्योरेंस मतलब 5 लाख रुपया तक तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। नाउ डिजिटल पेमेंट आजकल बहुत बार होता है ना, ऐसा है आपके अकाउंट में सैलरी अपने आप डिजिटली आ जाती होगी कि लाइन लगता है कैश लेने के लिए, नहीं लगता ना। तो ये डिजिटल पेमेंट का ये बेनिफिट है, आपको लाइन लग के कहीं पे पैसा नहीं लेने की जरूरत है, आपके अकाउंट में अपने आप आ जाती है। आपको किसी को पेमेंट भी करना रहता है तो आप देखते हैं डिजिटली ऑनलाइन, अब पेटीएम ये सबसे आप तुरंत पेमेंट कर सकते हो। तो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। तो डिजिटल पेमेंट्स भी बहुत तरह की होती है। आपके अकाउंट में जो पैसा जाता है, हो सकता है वो आरटीजीएस के थ्रू जाता हो, एनईएफटी के थ्रू जाता हो, या आईएमएफसी के अगेंस्ट जाता हो, इमीडिएट फंड ट्रांसफर। तो इस तरह से डिजिटल पेमेंट जो है, एनईएफटी है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, सर इसका क्या मतलब होता है? जो फाइनेंस, यहाँ पे कुछ फाइनेंस के लोग हैं, हाँ बताएंगे एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या अंतर है? आरटीजीएस एनईएफटी में क्या अंतर है? FD with any amount you can deposit, and RTGS more than 2 lakh. No, नहीं. No. RTGS below. RTGS below नहीं. बताइए। 2 लाख के ऊपर, NEFT below 2 लाख। एक स्लैब दिया है पर्टिकुलर, हाँ, अगर स्लैब अगर दिया है। हम लोग एक नेट सेल में समझे तो क्या है ना, एक स्लैब दिया हुआ है, वो स्लैब के ऊपर आप जब भी करोगे तो वो क्या है ना, आपको आरटीजीएस करना पड़ेगा, है ना। 2 लाख और बाकी जो है, हाँ बाकी जो है फिर आपको आप ये कर सकते हो। रियल टाइम आपका आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अरे आईएमपीएस भी दिखता है, मोबाइल बैंकिंग आप करोगे ना तो उसमें क्या होता है ना, एनईएफटी अगर आप करोगे ना तो आज इसमें सर अमाउंट लिमिट नहीं होता सर। आईएमपीएस में नहीं होता और है लेट ना। होता है पेमेंट, लेकिन आईएमपीएस में क्या है ना, आरटीजीएस आपको में अमाउंट immediate सर चल जाएगा। अमाउंट का स्लॉट दिया हुआ है। जैसे यूपीआई से हम लोग पेमेंट करते हैं ना, तो आईएमपीएस पे IMPS में, क्योंकि जब अकाउंट देखते हैं तो उसमें IMPS लिख के हाँ लिखा हुआ आता है आईएमपीएस मतलब इमीडिएट ट्रांसफर। लेकिन इसमें क्या होता है ना, आईएमपीएस आप करोगे ना तो आपके अकाउंट से कुछ रुपया हो सकता है, 10 रुपया काट ले। सर तो RTGS इंटरनेट में बैंकिंग काटता है. आरटीजीएस में काटेगा वो ठीक है, लेकिन एनईएफटी आप करोगे तो बहुत बार आपका अकाउंट से रुपया नहीं काटता है, सेम बैंक में करता है। RTGS में काटता है. तो ये सब बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका पार्ट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ओवरव्यू आपको एक रहे। मोबाइल बैंकिंग, ऐसा कोई है जो मोबाइल बैंकिंग यूज नहीं करता ये सोच के कि मैं मोबाइल बैंकिंग यूज करूंगा तो कोई मेरे अकाउंट से रुपया निकाल लेगा? सर हम आप फाइनेंस के हो क्या आप बोल रहे हैं ऐसा? फाइनेंस सही नहीं सर, पढ़े हैं पढ़ाते हैं, फाइनेंस सही नहीं। अच्छा तो जमा क्या करें, आप दबाव नहीं करते। एक्चुअली देखिए ये ब्रीफ है, हाँ ठीक है। रीजन ये है जानने का क्योंकि अभी हम लोग आगे जो स्लाइड्स कवर करेंगे ना उसमें हम लोग ये डू एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या आप अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है। तो ये इम्पोर्टेंट है जानना। क्या पता आज के सेशन के बाद कल आप इंटरनेट बैंकिंग में एनरोल करा लें। सर ये डिजिटल प्रो इसका डिसएडवांटेज बताइए ना। इसका अभी आगे आएगा मैम। डिसएडवांटेज इसका? हाँ आगे आएगा। एडवांटेज डिजिटल पेमेंट्स में मोबाइल वॉलेट भी होता है। जिस तरह आपके पास बैग है, एक पर्स है, वैसे आपके मोबाइल के अंदर भी एक पर्स है जो आपकी डिजिटल करेंसी को रखता है। तो पेटीएम और ये सब जो डिजिटल करेंसी वॉलेट है तो उसमें कोई पैसा आपको दे तो आपके वॉलेट में रुपया भी आ जाएगा। बैंक अकाउंट मतलब आपके बैंक में रुपया नहीं आएगा, वो अलग से, दैट इज मतलब एक बीच में है, ठीक है। फिर पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? वर्चुअल वॉलेट होता है।
आप याद है कभी पेट्रोल पंप लेते हैं तो उसको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देते हैं, एक मशीन लेके आता है, उसको स्वाइप करता है, तो वो जो पीओएस बोलते हैं वो पॉइंट ऑफ सेल हुआ। तो पॉइंट ऑफ सेल मतलब जो पॉइंट पे सेल हो रही है वहां से जो कलेक्शंस होते हैं उसको पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, या पॉइंट ऑफ परचेज भी बोलते हैं। तो जब आप शॉपिंग करने बिग बाजार जाएंगे तो वहां से भी आप सामान लेंगे तो नॉर्मली लोग डिजिटल जब पेमेंट करते हैं तो कार्ड से पेमेंट करेंगे तो वो पॉइंट ऑफ पीओएस बोलते हैं मशीन। उसके कुछ चार्जेस बैंक लेता है और वो आपको मशीन प्रोवाइड कर देता है। अब एक आता है यूपीआई, वही यूपीआई का हम लोग बात किए, आजकल सब्जी वाला भी यूपीआई ले रहा है, आप देखेंगे तो उसमें क्या चेंज का दिक्कत नहीं है, कहीं बाजार आप निकल गए पर्स नहीं भी रखे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उसको यूपीआई कर दीजिए। तो यूपीआई करने से क्या होता है, आईएमपीएस के ही एक पार्ट है, तुरंत उसके अकाउंट में उतना रुपया क्रेडिट हो जाता है। इसका एडवांटेज ये, इसका कोई चार्जेस नहीं लगता है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले इसमें चार्जेस कुछ लेवी करता था, जिसके पास रुपए जाता है वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता था तो वहां चार्जेस लेता था, फिर उसको भी वेव कर दिया। तो मोदी जी जो बोलते हैं डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो यही सब जो पार्ट है यूपीआई और ये सब इसी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है। अभी यूपीआई ट्रांजैक्शन हर मंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है इंडिया में। नाउ एडवांटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट का एडवांटेज हमको लगता है हम लोग डिस्कस कर लिया है कि वो चार्जेस नहीं लगती है, तुरंत हो जाता है, फास्ट, इजी, कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल एंड लेस ट्रांजैक्शन फीस, प्रोवाइड अ डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, गिव अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल पेमेंट। आपको पता है ऑनलाइन आप जितना पेमेंट किए, 1 महीना पुराना हो, 1 साल पुराना हो, आप वहाँ रिकॉर्ड कर लीजिए, आपको टोटल जो है आपको मिल जाएगी आपने किसको पेमेंट किया है। तो ये अब अगर आप कैश देते तो आपको तो ध्यान में नहीं रखा। नाउ डू एंड डोंट्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, मैडम जो पूछ रही थी कि डिसएडवांटेज या एडवांटेज क्या है, तो देखिए जो मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग आप यूज करते हैं तो उसमें बोला जाता है यूज पासवर्ड फॉर योर मोबाइल एंड कंप्यूटर सो दैट नो वन एल्स कैन एक्सेस द सिस्टम। आप जो मोबाइल ये सब में जो है आप अपना पासवर्ड डाल के रखिए, आप डेस्कटॉप में भी कर रहे हैं तो उसका पासवर्ड डाल के रखिए। और ऑलवेज विजिट दी बैंक सिक्योर्ड इंटरनेट बैंकिंग साइट रेगुलरली। सर कैसे रेगुलरली क्यों बोल रहे हैं, तो बुक मार्क बना लीजिए, अगर आप डेस्कटॉप को यूज करते हैं तो उसका बुक मार्क बना लीजिए क्रोम में, और वहां क्लिक करेंगे तो बार बार आपको वही साइट में, हर बार आपको टाइप नहीं करना कि एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग करके, तो बुक मार्क बना लीजिए। लॉग आउट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग इमीडिएटली आफ्टर यू कंप्लीटेड योर ट्रांजैक्शन, हर बार यूज करने के बाद लॉग आउट कर दीजिए, उसको अनअटेंडेड मत छोड़िए। पता चलेगा आप जैसे यूज करके गए कोई और बैठ के उसमें ट्रांजैक्शन कर लिया। नॉर्मली ये सब सर ऐसा कोई क्यों करेगा सर, कोई हमसे दुश्मनी है ऐसा कोई क्यों करेगा। नॉर्मली आप मान लीजिए आप कोई साइबर कैफे में गए, जहाँ पे मान लीजिए आपके घर पे नेट नहीं चल रहा, वहाँ गए, वहाँ इंटरनेट बैंकिंग किया और आप निकल गए, तो कोई अगर देखा इसका ओपन है तो हो सकता है वो मिसयूज कर ले। आज के दिन ओटीपी आ जाता है हर ट्रांजेक्शन में, लेकिन फिर भी कुछ ट्रांजेक्शन है 5000 के किलो जिसमें ओटीपी नहीं पूछता है, वो ट्रांजेक्शन आपको करने देता है विदाउट ओटीपी। तो इसी के लिए यहाँ पे फ्रॉड होने का चांस है। इफ यू सस्पेक्ट अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन इन योर अकाउंट रिपोर्ट इट इमीडिएटली टू द बैंक। अगर आप जैसे ही आपके अकाउंट में मोबाइल पे मैसेज आया आपके अकाउंट से 10,000 रुपया माइनस हो गया है, लेकिन आप देख रहे हो मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं, इमीडिएटली आप अपने जो ब्रांच है वहाँ जाके एक एप्लीकेशन जमा कीजिए कि ऐसा हो गया, तो आपके अकाउंट को वो होल्ड कर देगा कि और कोई ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और जिसने जो अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर किया उसका भी बैंक को फ्रीज कर देगा वो। इन द मीन टाइम अगर वो तीसरे कोई अकाउंट में पैसा चल गया, तीसरा अकाउंट भी फ्रीज कर देगा। तो आपको जो है ये एक्टिव हो जाना है, ताकि इमीडिएटली इन्फॉर्म करने का मीनिंग यही होता है कि पैसा ज्यादा जगह ट्रांसफर नहीं हो जाए। नाउ इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, नेवर सेव योर, इसमें आपको क्या नहीं करना है ये चीज बोल रहा है कि आप अपने मोबाइल में पासवर्ड ये सब सेव करके मत रखिए, या डेस्कटॉप में भी उसको याद करके रखिए। जैसे होता है आजकल हम लोग इजीनेस के लिए उसको सेव करके रख लेते हैं, तो आपका मोबाइल अगर घूम गया तो जो मोबाइल लिया पासवर्ड आपके मोबाइल पे था नहीं, वो इंटरनेट बैंकिंग खोले, इंटरनेट बैंकिंग में देखा कि पासवर्ड तो सेव है, उसको क्लिक किया तो वो एक्सेस कर लिया, फिर कोई अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लिया। नेवर लीव द हैंडसेट अनअटेंडेड एंड लॉग इनटू योर मोबाइल बैंकिंग है, मतलब अपने हैंडसेट को जो है अनअटेंडेड मत छोड़िए। नेवर लीव योर फोन अनअटेंडेड व्हाइल कैरिंग ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और नेवर डाउनलोड फ्रॉम अनट्रस्टेड वेबसाइट्स। कोई होता है आप देखोगे वहाँ पे बोलेगा कि ये आप डाउनलोड करना चाहते हो ये ऐप को, ये ऐप जो है अनट्रस्टेड है, ट्रस्टेड नहीं है, तो आप जो ऑफिशियल ऐप है उसी को डाउनलोड कीजिए।
दूसरे ऐप्स जा जाके डाउनलोड मत कीजिए। बहुत बार ऐड दिखाएगा ये वाला ऐप यूज करने से आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, पर वो ऑथराइज्ड है कि नहीं वो आपको जानना जरूरी है। ये रिसेंटली एक बार हुआ था, मेरे पास फोन आया कि सर क्रेडिट कार्ड आप अपना रजिस्टर कर लीजिए, और मैं लॉगिन करके एक लिंक में क्लिक किया तो एकदम SBI कार्ड करके आ रहा था। लेकिन मुझे वही सस्पिशियस लगा, SBI कार्ड तो आ रहा है लेकिन ये www.sbi cards करके नहीं है, वो आगे में कुछ और उसका था, HTTPS करके, फिर www. तो HTTPS नहीं था, खाली HTTP था। S का मतलब होता है सिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड नहीं था वो, तो उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया था कुछ उसी तरह से उन्होंने होम पेज पूरा बना दिया था। तो एकदम अटेंटिव रहिए, अगर कोई आपको फोन में डायरेक्शन दे रहा है सर यहाँ जाइए वहाँ जाइए, आप इसमें क्लिक कीजिए उसमें क्लिक कीजिए, तो एक बार होल्ड हो जाइए, बोले ठीक है मैं आपको 5 मिनट बाद फोन करता हूँ। और आपके अगल बगल अगर कोई है ना तो उनसे एक बार गाइड कीजिए, देखो ना मेरे पास ऐसे फोन आ रहा है, तो आपको अटेंटिव थोड़ा होना पड़ेगा। नाउ मूविंग टू अनदर टॉपिक विच इज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। कितने लोग हैं जो लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराए हैं क्योंकि उन्हें कंफर्म है कि कुछ नहीं होगा? ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस? देखिए दोनों जरूरी है। ये एक्चुअली देखिए ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, दोनों एक्चुअली इंडिपेंडेंट चीज है, दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज। क्या इवेंट होने से आपको क्या मिलेगा वो जानना जरूरी है। आज के दिन हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि हेल्थ की कॉस्ट जो है वो बहुत इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा रेट से बढ़ रही है। अगर आप कहीं हॉस्पिटलाइज्ड अगर कोई भी होता है तो आप सोच के चलिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख वो बिल एकदम मीटर ऐसे भागेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर इंश्योरेंस आपकी हेल्थ इंश्योरेंस रहती है तो आप कम से कम ये इम्पोर्टेंट आपको है कि आप एक अच्छे हॉस्पिटल पे जाके एडमिट हो सकते हैं या अपने फैमिली मेंबर को एडमिट कर सकते हैं, वरना आपको ये सोचना पड़ेगा अरे मैं तो अभी वो वाला हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, ये वाला नहीं जाएंगे, तो आप अच्छी जगह नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी हम लोग दोनों इंडिपेंडेंट चीज है, दोनों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि विच इज इम्पोर्टेंट और नॉट। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला है सर, लाइफ इंश्योरेंस अगर लेना है तो कितना रुपया का लेना है, सबसे पहला कंफ्यूजन तो वही होता है। उसमें एक थंब रूल है सर, उसमें एक थंब रूल है सर कि आपकी जितनी इनकम है उसका 5 या 10 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे आपकी ईयरली इनकम 10 लाख रुपीज है तो आप 10 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 करोड़ रुपया तो आपको लेना ही है सर। आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड है, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपया है साल की तो 50 लाख। अब उसमें ऐड ऑन क्या करना है, सम एश्योर्ड, मतलब अगर कोई एक्सपायर करता है तो उसको घर वाले को कितना मिलेगा, तो आपकी जो इनकम है उसका कम से कम 10 टाइम्स ये लीजिए। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास हाउसिंग लोन 30 लाख रुपया का है तो आपको 1 करोड़ प्लस 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख हो गए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे बच्चे का एजुकेशन भी है, उस समय 2-3 साल में मुझे और रुपए की या 5 साल में और जरूरत पड़ेगी, कोई लायबिलिटी ऐसी है तो आप उसको भी ऐड कीजिए। सर इसमें एक फायदा है सर, इसमें एक फायदा है, आदमी जीते जी इसको देख नहीं सकता है, ये सारा फैसिलिटी मरने के बाद ही मिलता है। नहीं सर, इसमें क्या है ना, 2-3 चीज है। जैसे भी गेट योर प्रीमियम बैक की भी पॉलिसी चल रही है कि अगर आपको कुछ नहीं होता है तो आप जितना प्रीमियम दिए उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन प्रिंसिपल रुपये आपको वापस मिल जाएगा सर। और ये जो हम लोग कराते हैं ना वो बात के लिए कराते हैं। अगर हमको इस जीते जी को देख लेना तो हम करेंगे ना। तो ये थंब रूल जो है आप 5 टाइम्स 10 टाइम्स अपने एनुअल इनकम का कराइए। तो यहाँ पे एग्जांपल माने है कि 5 लाख रुपए एनुअल इनकम है तो 50 लाख रुपए ये एजुकेशन एक्सपेंस, बच्चे का 10 लाख, लोन 20 लाख रुपए लिया हुआ है, और चिल्ड्रन का मैरिज 10 लाख, लीगेसी ऑफ फैमिली कुछ और भी 25 लाख रुपए का है लायबिलिटी, तो मिला के 1 करोड़ 15 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस उसने लिया है। सर हमारा कोई लायबिलिटी नहीं है, खाली हमारा इनकम 10 लाख रुपया है तो आप 1 करोड़ का ले सकते हैं टर्म इंश्योरेंस। ये टर्म इंश्योरेंस लीजिए या बाकी LIC से लीजिए जहाँ पे आपको सम एश्योर्ड है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। प्लीज एस्टिमेट योर टर्म कवर रिक्वायरमेंट। अगर मान लीजिए आपको किसी को एस्टिमेट करना है कि सर मुझे कितने की पॉलिसी लेनी है, तो आप ये फॉर्मूला से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, अब हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, कोई है जिसको कंफ्यूजन है हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस जैसे हम लोग कभी एडमिट होते हैं कहीं हॉस्पिटल में, हमारी तबीयत खराब होती है, अगर हम एडमिट होंगे तभी मिलेगा, हम जाके डॉक्टर को OPD में दिखा के आ गए तो नहीं मिलेगा। वो भी कवरेज कोई कोई में रहती है स्पेशल,
लेकिन उसकी फिर प्रीमियम ज़्यादा रहती है। तो नॉर्मल अगर मैं 24 आवर्स या कितने आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन अगर मैं वो हॉस्पिटलाइज हूँगा तभी मिलेगा, तो मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा सकता हूँ, अपनी वाइफ का करा सकता हूँ, अपने बच्चों का करा सकता हूँ, अपने मम्मी पापा का भी करा सकता सर हूँ। वो तुरंत नहीं मिलता है, आपका 3 मंथ्स आई थिंक दे रही है। देखिए इसमें कैशलेस होता है, सर कैसे आप जाके एडमिट होइए, आप बिना पैसा दिए आप घर आ जाइए। देखिए नहीं आजकल बहुत इजी हो गया, क्योंकि होता क्या है देखिए, नहीं देखिए होता इसमें क्या है कि आप किसका कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आप वो हॉस्पिटल में जाइए जहाँ कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है, उसका एक लिस्ट रहता है। हाँ ठीक है, कुछ हाँ हो सकता है। एक्चुअली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सब ज्यादा है, और धनबाद में भी अगर आप देखें तो 5 to 7 हॉस्पिटल्स हैं जो कि कैशलेस पे आज के दिन काम कर रहे हैं, और मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा है और कैशलेस के बेसिस पे। तो इसमें आपको प्लान करना पड़ेगा। ये पाटलिपुत्र हॉस्पिटल है, अशरफी अशरफी है, फिर ये जलान है, जलान तुरंत देखिए स्पेसिफिक कोई एशियन। कंपनी नहीं है, 4-5 कंपनी है, 5-6 बजाज है, बहुत सारी कंपनी है। एक्चुअली मेरा तो कंपनी दे देती है इसलिए मुझे नहीं कराना पड़ा, लेकिन मेरे फ्रेंड का ये केस में मैंने देखा था, तो उसने पाटलिपुत्रा में जाके पूरा 1 लाख रुपए का एस्टिमेट था, खाली करके आ गया, 1 रुपया नहीं देना पड़ा। एक्चुअली उनको बोलते हैं कुछ उनका कंज्यूमेबल्स का कुछ खर्चा रहता है, वो उनको पॉकेट से देना पड़ता है खाली, तो वो कवर नहीं रहती है। तो मतलब देखिए इसमें दोनों रिव्यू है, किसी को हो सकता है पॉलिसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लेकिन इंडिविजुअली 1-to-1 सिचुएशन वेरी करती है। लेकिन आप ये तो मान के चलिए कम से कम 5 लाख का मेडिकल खर्चा लगा, आपके पॉकेट से 5 लाख तो नहीं लगा, 20,000-30,000 रुपए लगा। तो एक तरह से आप ये मानिए, आप प्रीमियम अगर हर बार 30,000-20,000 रुपए दे रहे हैं और 10 साल में आप कितना रुपए दिए, 20,000 दे रहे हैं तो 2 लाख रुपए दिए, और इन द मीनवाइल अगर कुछ होता है तो 5 लाख का अगर आपका बिलिंग हो जाता है तो कम से कम 2 लाख का 5 लाख का तो एडवांटेज ले लिए। तो आप ये देख के चलिए सर हॉस्पिटल अगर आप वो कैशलेस में जाते हैं तो ज्यादा बिल बनाते हैं। वो तो उनका आउटलुक है। देखिए यहाँ कैश नहीं मिलेगा वो उससे हमको मतलब नहीं, वो 1 करोड़ का बिल बनाते हैं, हमको तो उतना देना नहीं है। तो हमको भरना पड़ेगा। नहीं उतना पता रहता है कि वो 5 लाख का बिल बनने लायक है कि नहीं है कि नहीं, ठीक है। बिलिंग होता है मे भी 20% 30%, लेकिन हम लोग का यहाँ पे मेन जो डिस्कशन का पॉइंट है वो यही है कि हम लोग का हेल्थ इंश्योरेंस कराना है कि नहीं कराना है, ठीक है। इसके लिए आपको अपना पॉकेट भी देखना है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस भी करा लिए, लाइफ इंश्योरेंस भी करा लिए और पता चला आपके घर में सेविंग ही नहीं बच रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। देखिए आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि आप आराम से बैठे हो, कोई चिंता नहीं हो। वो मैं डिपेंड करता हूँ। बट व्हाई वरी अबाउट दिस नाउ? अभी से क्यों वरीड है? क्योंकि देखिए अभी से हम लोग को चिंता इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हमारा ह्यूमन बोलता है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो उसके हिसाब से या मेडिकल फैसिलिटी इतनी डेवलप हो गई है कि पहले हमारी एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स थी, अभी वो 75 ईयर्स हो गई है। तो हो सकता है और भी टाइम रहे। हेल्थ कॉस्ट जो है वो स्काई रॉकेटिंग हो रहा है उसकी कॉस्ट, और इन्फ्लेशन इज ईटिंग अवे आवर सेविंग एंड ब्रेकडाउन इन सोशल सिस्टम। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो बता रहा है यूएन जो प्रोजेक्ट किया है, पहले 70 ईयर्स था, अभी 75 ईयर्स है। हेल्थ केयर की कॉस्ट के बारे में एक आर्टिकल भी है जो बिजनेस टुडे में आया है कि उसकी प्राइजेस जो है बहुत हाई रेट से बढ़ रही है, और फ्यूचर में भी जो है हेल्थ सेक्टर ऐसा है कि जो कि रेट बहुत ज़्यादा आगे भागेगी। इन्फ्लेशन ईट्स अवे और सेविंग। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। तो क्या होता है ना, महंगाई के चलते अगर आज मैं कोई भी अपना सेविंग्स करके रखा हूँ तो पता चलेगा बाकी चीज़ की दाम इतनी बढ़ गई ना कि वो हमारी मेरी जो सेविंग की है वो सफिशिएंट नहीं है। तो इट्स बेटर कि मुझे वो इन्फ्लेशन के लिए आज से प्रिपेयर्ड रहना है। तो अगर मान लीजिए मैं इन्फ्लेशन को 6% पकड़ता हूँ जो कि एफडी का रेट है, तो ये तो क्लियर है सर, अगर मैं एफडी कर देता हूँ तो मैं इन्फ्लेशन को बीट कर दूंगा, दैट इज नो डाउट। तो एफडी में कम से कम इन्फ्लेशन मुझे नहीं मारेगा, भले मेडिकल कॉस्ट भले मार दे, क्योंकि मेडिकल कॉस्ट 6% से नहीं बढ़ता, उससे और हायर रेट पे बढ़ता है। तो इसमें क्या है ना, अगर मान लीजिए अगर 1 लाख रुपया अगर मैं आज रखा हूँ
तो इन्फ्लेशन के चलते उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 साल बाद 73,000। सर 10 साल बाद 54,000, 15 साल बाद 39,500 और 20 साल बाद 29,000 रुपया। तो सर क्या पहले क्या वो जो 500 की जो नोट रहेगी सर क्या वो कम होते रहेगी अपने आप? अगर मैं 1 लाख रुपया अलमीरा में डाल के रख देता हूँ, सामान की रेट हाई हो जाएगी तो आपकी रुपया कम नहीं होगी सर। यहाँ तो लेकिन लिख रहा है, यहाँ ये लिख रहा है कि जो आप 1 लाख में आज खरीदते हो उस दिन जाओगे वो सामान खरीदने ना, तो आपको वो नहीं आएगी। वो बोली अरे ये 1 लाख रुपए जो दे रहे हैं इसका वैल्यू 73,000 रुपया ही है, बाकी 17,000 रुपये और ला के दो। तो इसका मतलब ये है। तो इन्फ्लेशन के चलते तो ये हम लोग को इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। नाउ अगर सर मेरा महीना का 25,000 रुपया महीने का खर्चा है, बहुत लोग का इसके लिए मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं नहीं चाहता आप डिस्क्लोज करें मंथली कितना आपकी घर की एक्सपेंडिचर है। तो आप अगर 25,000 रुपया आपकी घर की एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका 5 साल बाद घर का खर्चा कितना हो जाएगा? 33,700 रुपया। सर 10 साल बाद 45,400 रुपया, 20 साल बाद 82,000 रुपया, 30 साल बाद 1,44,000 रुपया और 40 साल बाद 2,57,000। तो आप समझ सकते हैं क्यों आज के दिन चिंता करने की ज़रूरत है और मैं यहाँ आज क्यों हूँ। मैं आपको वही आँख खोलने के लिए आया हूँ कि आप उठ जाइए अब और सेविंग करना चालू कर दीजिए। नाउ व्हाट वी थिंक वी नीड, मतलब उठ जाइए मतलब सीट से मत उठिए, नींद से उठ जाइए। व्हाट वी थिंक वी नीड, देखिए ये तो मुझे लगता है कि बहुत एक्चुअल सिनेरियो के हिसाब से हमें लगता है कि हमें ये थोड़ा सा ही चाहिए, लेकिन जब रिक्वायरमेंट आती है तो पता चलता ना इतना सफिशिएंट नहीं, हमें इतनी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बाकी चीज़ तो हम लोग प्लान ही नहीं किए ना। कंटिजेंसी के बारे में हमने सोचा ही नहीं। शादी हम लोग सोचे बच्चे के एजुकेशन जो अभी जो प्राइस चल रही है वही चलेगी। आप बाकी जगह जैसे दूसरी जगह हो सकता है शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पता चलेगा एजुकेशन एक्सपेंडिचर और ज़्यादा है, तो कुछ कुछ अनप्लान्ड रहती है। नाउ स्टेप्स ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। सर आप स्टेप्स बता दीजिए। अब हम लोग रेडी है, अब हम लोग वी आर नाउ थिंकिंग ऑफ प्लानिंग। सो व्हेन विल आई रिटायर, आप कब रिटायर होंगे ये तो आपको पता है, तो आप उसको नोट कर लो। आप सर रिटायरमेंट कोई ऐसा भी हो सकता है जो 50 ईयर्स में अपने आप को रिटायर करना चाहे, कोई 40 ईयर्स में भी अपने आप को रिटायर कर सकता है अगर उसको लगे मेरे पास पर्याप्त सब कुछ है और मैं उस समय तक इतना रिटायरमेंट कर लूँगा, मुझे उसके बाद काम नहीं करना, उसके बाद मुझे मेरी जो पैशन है हॉबीज़ है मुझे उसे आगे बढ़ाना है, मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो यू कैन रिटायर एट एज ऑफ 40। और कोई ऐसे भी है जो बोल रहा मैं 70-80 ईयर्स में भी रिटायर नहीं करूँगा, तो इसी के लिए बोला रिटायरमेंट की एज आप डिटरमाइन करो। गवर्नमेंट ने तो 60 साल डिटरमाइन कर दी, आप अपने हिसाब से अपना डिटरमाइन करो। हाउ लॉन्ग विल आई लिव, मैं कितने साल जीऊँगा। देखिए ये एग्जैक्ट तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन आप अपने माइंड मेकअप तो कर सकते हैं कि मैं ये कितना लेके चल रहा हूँ। व्हाट इज दी मंथली बेसिक एक्सपेंडिचर, आपकी मंथली एक्सपेंडिचर कितनी है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ माई एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर, फ्यूचर में मेरी एक्सपेंडिचर कितनी होगी वो भी आपको डिटरमाइन करना है। क्यों सर 25,000 रुपये लिए थे ना, तो 25,000 रुपये तो एग्जाम्पल के लिए लिए थे, हर बार आपकी एक्सपेंडिचर बढ़ेगी भी, तो आपकी शौक बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगी, घर में बच्चे बढ़ेंगे, तो उसके जो है आपकी एक्सपेंडिचर जो है आपको जो भी लेना है रियलिस्टिक लेना है, ताकि आप 25,000 के हिसाब से लेते गए और पता चला कि आपके एक्सपेंडिचर अंडर एस्टिमेट कर लिए, वो भी सही नहीं है। What will be the how much should I provide for my health care and medical needs? देखिए वो पूछ रहे थे ना मेडिकल कराना है कि इंश्योरेंस कराना है, तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि हम कितना का मेडिकल इंश्योरेंस कराए। आप 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस करा लिए, लेकिन पता चला 10 लाख का कराने का जरूरत ही नहीं है, 5 लाख इज सफिशिएंट, तो ये आपको डिटरमाइन करना होगा। और एनी हाउ जब आप उस समय डिटरमाइन करते हैं तो उस समय यू हैव टू सर्वे इट कि वेदर हाउ मच इज सफिशिएंट and how much buffer do you need for my contingency expenses। अब कंटिजेंसी एक्सपेंस कितनी जरूरत पड़ेगी वो तो पता नहीं, हो सकता है 1 लाख की भी जरूरत पड़े, 50,000 की भी जरूरत पड़े या 2 लाख की जरूरत पड़े, तो ये सब हमें इंडिविजुअल अपना डिटरमाइन करना पड़ेगा। नाउ रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं सर, थोड़ा बता दीजिए। तो पहले केस में मंथली इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ कॉर्पस, अगर मैं 12% का अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न लेता हूँ,
सर आप तो एफडी में बता रहे थे 6% मिलता है, तो 12% आपको रिटर्न कैसे मिलेगा? तो कुछ एफडीज को छोड़ के और भी इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि हायर रेट ऑफ रिटर्न भी देती है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं, और 6% तो मैंने 1 साल का लिया, और जब एफडी में आप क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट करते रहोगे ना, तो उसके इन्वेस्टमेंट की आपको परसेंटेज ज्यादा आएगी। तो 12% के हिसाब से अगर मुझे 2 करोड़ 25 लाख रुपया एंड में मिलेगा, तो उसके लिए मुझे छूट रहा है सर आपका। हाँ, जैसे आप एफडी बढ़ा करते ज्यादा, टैक्स रेट पकड़ा है ना उसमें। अब वो तो आपके स्लैब के ऊपर है ना, आपका टैक्स स्लैब में आ आते नहीं आ रहा है। जैसे हो सकता है कि आपका अगर टैक्स taxable नहीं है। टैक्स जो एक्रूअल बेसिस, एफडी में एक्रूअल बेसिस पे लगता है, मतलब जो ईयर का जो टैक्स हुआ ना आपको, वो उसी साल आपको पे कर देना है। नहीं, तो बजट सर सब हो रहा है, डिपॉजिट करते रहे डिपॉजिट। नहीं, एक बार आप एफडी करके 5 साल करके छोड़ दिए ना, 5 साल का एफडी करके छोड़ दिए, फिर 5 साल बाद वो मैच्योर हुआ, फिर वापस उसको एफडी कर दिए, फिर वो मैच्योर हुआ, तो अभी आपको टैक्स जो है 30%, वो तो कोई भी आप इनकम करोगे तो आपको लगेगा ही। हाँ, तो आपको, लेकिन अगर कॉर्पस चाहिए इतना, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो करना होगा। मैं एफडी की एग्जांपल लिया हूँ, हो सकता है आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो, हो सकता है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, या और कोई इंस्ट्रूमेंट में आप कोई जमीन ले लो। आप सर, मान लो जमीन अगर ले लेते हो, इनकम टैक्स में एफडी भी तो आता है ना कि इतना एफडी करने से आपका टैक्स नहीं लगेगा उस मनी पे। हाँ 5 लाख का 5 इयर्स का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एफडीज में, तो वो आपको एग्जम्पशन भी मिल जाएगा। एग्जाम्पशन। 80C में आपको जो बेनिफिट मिल जाता है उसमें। टैक्स सेविंग बॉन्ड्स भी तो टैक्स सेविंग बॉन्ड्स, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बहुत है। फॉर एन एग्जांपल मैंने एफडी लिया, आगे स्लाइड्स में कवर्ड है और भी इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर मुझे एक कॉर्पस चाहिए 2 करोड़ 25 लाख का, तो मुझे 12,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा मंथली। लेकिन अगर मुझे कॉर्पस 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चाहिए, तो मुझे 16,500 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो अलग अलग में भी आएगा, अलग अलग ईयर्स के हिसाब से कितने कितने साल में कॉर्पस रेडी होगी। हाँ मैम, जो केस 1 हम लोग देख रहे थे, उसमें ये था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 80 इयर्स पकड़ रहा हूँ, और उसके बाद मैं कॉर्पस, मेरा मंथली एक्सपेंडिचर, कॉर्पस नीडेड टू मीट माय मंथली एक्सपेंडिचर, जो हम लोग 25,000 रुपया का ये लिए थे ना, मेरा मंथली एक्सपेंडिचर है, वो मैं ये सोच रहा हूँ कि आफ्टर सच ए स्पैन ऑफ टाइम, मतलब 25 साल बाद, मुझे मेरा मंथली एक्सपेंडिचर 1,07,000 रुपया होगा। ठीक है, 1,07,000 आफ्टर 20 इयर्स मेरा मंथली ये होगा, तो उसके लिए मैं 2,25,000 का कॉर्पस पकड़ रहा हूँ। और सेकंड केस में जो है मेरा 90 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेड रेशियो है, तो उसमें मेरे को कॉर्पस कितना का जरूरत पड़ेगा, 1,07,000 रुपया का 30 साल बाद, तो उसके लिए हमको 3,17,000 रुपया का, 3 करोड़ 17 लाख रुपया का कॉर्पस का जरूरत पड़ेगा। तो ये आगे हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या बता रहा है। ये 7.5% रिटर्न ऑन कॉर्पस पोस्ट रिटायरमेंट प्रेजेंट अर्निंग, इसमें ले रहा है प्रेजेंट अर्निंग मेरी 40,000 है, और मेरा मंथली एक्सपेंडिचर 25,000 रुपया है। इसका मतलब हमको 15,000 रुपया ही सेविंग हो रही है। और मैं करेंटली 35 इयर्स में हूँ, और मैं रिटायरमेंट 60 इयर्स में ले रहा हूँ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर मैं 80 या 90 इयर्स ले लेता हूँ, तो मेरे को कितना, इसमें ये दिखा रहा है कि अगर मैं खाली लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 की जगह 90 इयर्स लेता हूँ, तो उससे कितना, क्योंकि मैं जितना साल और जीऊंगा मेरी खर्चा तो उतनी ज्यादा ही बढ़ जाएगी ना। तो इसी के लिए मुझे जो कॉर्पस चाहिए होगा वो 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चाहिए होगा, अगर मैं 90 इयर्स जीता हूँ तो। और अगर मैं 80 इयर्स जीता हूँ, तो मेरे को कॉर्पस 2 करोड़ 25 लाख की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये एस्टिमेट करना पड़ेगा कि मैं कितने की एक्सपेक्टेड लाइफ अपना ले रहा हूँ, तो मेरा खर्चा कितना होगा, तो उसके हिसाब से मुझे मंथली अपनी सेविंग करनी पड़ेगी। नाउ अब एक बहुत बेसिक डिफरेंस अपने को ये समझना होगा कि व्हाट इज सेविंग, सेव एंड इन्वेस्ट। बहुत लोग है ना ऐसे सोचते हैं कि जितना मैं सेव करूंगा उतना ही इन्वेस्ट करूंगा, कि जितना मैं इन्वेस्ट किया वही सेविंग है। तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि मैं सेव कितना करूं या इन्वेस्ट कितना करूं, या सेव या इन्वेस्ट दोनों एक चीज है कि नहीं। तो एक फॉर्मूला जो बोला जाता है कि आपकी जो इनकम है उससे आप माइनस कर लो अपने एक्सपेंडिचर जो है, जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंस, अगर आपकी कोई EMI है, इंटरनेट एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है ना, वो आप माइनस करके देख लो आपका कितना रुपया बच रहा है। वो रुपये में आप अपना
एक सेविंग भी डिटरमाइन कर लो कि मुझे 5,000 रुपया हर महीना सेविंग करना है, और बाकी जो है वो आपकी इनकम, आप उसको मानो कि अपने इनकम में से आप कुछ सेविंग को अलग कर लो। ऐसा मत सोचो कि जो बचेगा वो मैं सेविंग करूंगा, पता चलेगा किसी महीना सेविंग हुआ किसी महीना नहीं हुआ। तो इसी के लिए सेविंग एक फिक्स अमाउंट रख के, सर हम लोग तो ऐसा बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता है, तो उसका भी एक सोल्यूशन है। आगे पीपीटी में अगर आप देखोगे तो अपने सेविंग्स को कैसे बचाना है, या मतलब कैसे उसको कम कर, मतलब सेविंग्स को कैसे प्रमोट करना है, उसके लिए आपको कुछ स्टेप करना पड़ेगा। अगर आप लोगों मतलब ये है कि नहीं सर हमें सेविंग करना है, आप आगे बताइए, तो मैं इस पॉइंट को बताऊं करना है कि नहीं करना है। अच्छा ठीक है सर, मतलब सबसे पहले आपको अपने खर्चा क्या मैनेज करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस को, कि आपकी खर्चा एक्सपेंसेस क्या क्या है। नो व्हाट योर एक्सपेंसेस आर, सच में आपका खर्चा है कि नहीं वो जानना पड़ेगा। सर कुछ खर्चा हो तो मेरे नॉलेज में रहते नहीं, हस्बैंड खर्चा कर देते हैं सर, तो वैसे नहीं चलेगा। टोटल एक्सपेंसेस को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सर उल्टा कि बोले कितना आप, है। वाइफ खर्चा कर देती है बोला जाता नहीं देखिए अभी तो मेरे सामने जो रहेंगे हम तो वही बात है। अच्छा अच्छा ओके, मेजॉरिटी जो रहेगी। अच्छा फायदा देके बोले, ठीक है। वरना मैं उधर का अगर बात करूंगा तो हो सकता है इधर समझ में नहीं आए। हाँ ठीक, हाँ अच्छा लगा सर ये हाँ, वाला। कीप एवरी रिसीप्ट, जो खर्चा करे बोलिए बिल ला के दीजिए। मतलब जरूरी नहीं है, मैं जस्ट मजाक के लिए बोल रहा हूँ कि आप रिसिप्ट इसलिए रखने बोल रहे हैं ताकि आपको पता चले कि सच में ये मतलब इतना अमाउंट का खर्चा है कि नहीं। रिकॉर्ड एवरी एक्सपेंस डेली, अगर आप मान लीजिए डेली का खर्चा एक डायरी में नोट कीजिए कि एक्सपेंस आपका डेली कितना लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप डेली का खर्चा नोट कर लिए तो ऊपर की जितनी पॉइंट है सब खत्म हो जाएगी अपने आप ही, तो आपको पता है खर्चा कितना हो रहा है। उसके बाद टोटल योर एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द मंथ, अपने मंथ के एंड में एक बार जितना खर्चा हुआ सबको एक बार टोटल कर लीजिए। उससे क्या होगा ना, आपको पता रहेगा कि हमारा मंथली खर्चा कितना है। उसके बाद डू दिस फॉर 3 मंथ, 3 महीना तक इसको कीजिए। 3 महीना आप जैसे ही करेंगे आपकी हैबिट बन जाएगी, और हैबिट बन जाएगी उसके बाद फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। पहला महीना दूसरा महीना थोड़ा कष्ट होगा, तीसरा महीना और थोड़ा कम होगा, चौथा महीना से वो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, सर वो तो कोई करता ही नहीं है। अगर लगता है आपको, क्यों देखिए जब आप कोई चीज लिखते हैं ना तो आपको लगेगा यार ये लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, अगले बार से अगले महीना से नहीं करेंगे, तो हो सकता है तो ये चीज इंप्रूव करती है, और ये जो है वो ट्राइड मेथड है। नाउ डिसिप्लिन रेगुलर सेविंग कैन प्रोड्यूस बिग रिजल्ट, एग्री। अगर आप 500 रुपया भी महीना अगर जमा कर दीजिए सेविंग अकाउंट में, 1 साल बाद देखिए तो 6,000 रुपया हो जाता है। तो स्मॉल सेविंग और 6,000 रुपया 10 साल तक ऐसे ही जमा कर दिए तो 60,000 रुपया हो गया, और 500 रुपया क्या बड़ा चीज है, और 10 साल बाद तो 6,000 रुपया, तो मैं खाली प्रिंसिपल बता रहा हूँ। इंटरेस्ट अगर उसमें आप जोड़ लीजिए तो 1 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। 1 लाख रुपए तो फ्री में आ गया, तो स्मॉल सेविंग के हिसाब से वो हो जाता है। नाउ अब ये जो पीपीटी है, ये भले पीपीटी हो सकता है विजिबल नहीं हो, मैं ये बता दूं कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट आज चालू करते हैं और कोई 5 साल बाद चालू करता है तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। बोला सर मैं तो आपका सेशन सुन लिया, बहुत अच्छा था सर, मैं सोचूंगा एक बार क्या करना है उसके बाद डिसाइड करूंगा। तो जो लोग ये सोच के बैठे हैं उनके लिए पीपीटी है। इसमें बोला है 2 लड़की थी, प्रिया एक रिया, ठीक। आपके क्लास में भी अगर कोई होगी तो नहीं, मैं क्लास के लिए बोल रहा हूँ, टीचर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्लास में कोई ऐसी स्टूडेंट होगी तो आप रिलेट कर लीजिएगा। ये प्रिया है, प्रिया बहुत ही ओबीडियंट लड़की थी, टीचर का बात तुरंत मान ली। तुरंत मान के क्या की, उसने 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। 12% उसमें रिटर्न आ रहा था, वो भी कितने पीरियड के लिए, 20 इयर्स के लिए उसने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। जब उसने 20 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया तो उसे पता है कितना रुपया रिटर्न मिला, उसकी रिटर्न मिली उसको 50 लाख अप्रॉक्स। वो जब कॉर्पस 20 साल बाद रेडी हो गई तो उसको उसका रिटर्न 50 लाख रुपया मिला। अब रिया का केस देखिए, रिया बोली मैं एक काम करती हूँ, पहले प्रिया का देखती हूँ प्रिया क्या कर रही है, उसके बाद मैं करूंगी। तो उसने 5 साल बाद इन्वेस्ट करना चालू किया, वो भी 10,000 रुपया, 5,000 भी नहीं, उसके डबल अमाउंट को इन्वेस्ट किया।
और जब उसने इन्वेस्ट किया वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 10 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया तो उसे 23 लाख रुपया मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग जो होती है ना, उसके चलते इफेक्ट है। तो अब आप समझ गए आपको पिया बनना है कि रिया बनना है। तो अगर आप बाद में अगर ज्यादा वैल्यू भी इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि आपको वो कॉर्पस नहीं मिले जिसके आप हकदार हैं। ठीक है नाउ सर, अब क्या क्या ऑप्शन है हम लोग को बता दीजिए, हम लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो इन्वेस्ट करने के लिए खाली एफडी नहीं है, कैलकुलेशन समझाइए सर, कैलकुलेशन क्या होगा इसका? कैलकुलेशन सर अगर आपके पास ऐप है तो आप ऐप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें 5,000 रुपया 20 इयर्स तक इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब 20 into 12 into 5,000, ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, इसको और ये इसमें जो रिटर्न आ रहा है वो आपका 12% के हिसाब से इनकम एक्सपेक्टेड रिटर्न है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा सर हमेशा, सिंपल इंटरेस्ट कभी भी आपको नहीं मिलेगा सर। और बगल वाली जो कैलकुलेशन है वो 10,000 रुपया प्रीमियम जो है 10 साल के लिए है। ईएमआई जो है मतलब 10 years into 12 into 10,000। सर उसका ड्यूरेशन भी तो कम है, 10 years है तो ओनली, तो 10 years ही बचा ना मैम। 20 years है ना सर। तो मैम मैं तो यही बोल रहा हूँ, अमाउंट भी तो डबल है मैम। 15 years कर सकते हैं। मैं तो यही बोला ना, पिया और रिया में क्या बोला, 20 साल बाद दोनों के पहुंचना था। मेरा दिखाने का रीजन यही है कि इन्वेस्टमेंट उतना ही रुपया हो रहा है, लेकिन ये क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ओवर 20 years और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर 10 years, लेकिन डेस्टिनेशन इज द सेम। मैं वही बात बोला, डेस्टिनेशन हम लोग सबका एक ही है, लेकिन क्या है आप कौन से रास्ता चूज कर रहे हैं, दैट इज अप टू यू। 10 years का कंपाउंड इंटरेस्ट कम हो गया उसका, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट कम हो गया। अमाउंट एंड ड्यूरेशन। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्योंकि मैम कोई रुपया आज से इन्वेस्ट है, पहला 5,000 इन्वेस्ट हुआ 20 साल के लिए, और इसका जो है बगल वाली का उनका 10,000 इन्वेस्ट हुआ 10 साल के लिए, तो वहां से जो डिफरेंस आ गया। सर आगे बढ़े सर, अब हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट आर ऑल दी ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग इन्वेस्ट कर भी रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन जो इन्वेस्टमेंट का है दैट इज सेविंग बैंक अकाउंट। सर सेविंग बैंक अकाउंट सबका होगा, सबको इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है, ये खाली सेव करने के लिए रहता है। यहाँ पे जो पैसा सरप्लस हो जाए आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। दूसरा, यहाँ से इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, यहाँ से आप बैंक में एफडी कर दीजिए, तो 6% आपका जो इन्फ्लेशन है वो तो कवर हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर हमें इससे भी ज्यादा कमाना है, तो अगर आपका ऐसा मोटिव है कि सर मुझे 6% में रेस्ट्रिक्ट नहीं होना है, मुझे कुछ और इनकम हायर रिटर्न चाहिए, तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। एफडी में रिस्क नहीं रहता, इसलिए रेट ऑफ रिटर्न कम है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो देयर आर मोर ऑप्शंस। बहुत सारा है सर, जैसे सबसे पहले रियल एस्टेट सर। अभी यहाँ पे कॉलेज खुल गया ना, ये यूनिवर्सिटी, तो देखिए सब जमीन खरीद रहे हैं ना, क्यों? वो इन्वेस्टमेंट है। या तो रीसेल करेंगे तो उनका बिजनेस है, और कोई लेके रख देंगे तो इन्वेस्टमेंट है। तो हो सकता है कोई 5 करोड़ का जमीन खरीदा है, फ्यूचर में जाके 10 करोड़ हो जाएगा। अगर 5 साल में 5 का 10 हो गया, इसका मतलब सर कितना % रिटर्न हो गया, डबल हो गया 5 साल में रुपया। तो दिस इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। तो रियल एस्टेट में आप घर भी खरीद सकते हैं, तो दैट इज अप टू यू, आपको क्या लेना है। लेकिन रियल एस्टेट में क्या है ना, ये जो हम लोग 500 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना जो करते हैं, वो रियल एस्टेट में पॉसिबल नहीं है। आपके पास उतनी प्रिंसिपल है, उतनी अमाउंट एक बार में होनी चाहिए। तो ये मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। नाउ बॉन्ड्स होता है, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे बोल रहे थे, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का भी किसान विकास पत्रिका ये सब में 8% के आसपास रिटर्न करता है, तो आप वो भी ले सकते हो। इसमें इनकम टैक्स का डिडक्शन भी है। ओके, नाउ शेयर्स में भी आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर किसी को ऐसा आइडिया है या टाइम है या नॉलेज है तो दे कैन गो फॉर शेयर्स आल्सो। गोल्ड सर उसमें तो इन्वेस्ट करते ही हैं हम लोग, तो अभी गोल्ड का दाम बहुत बढ़ा हुआ है। तो जैसे जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए ज्वेलरी बना ली हो तो अलग चीज है, बहुत जन रॉ गोल्ड भी मतलब ले लेता है। तो गोल्ड में भी आप ले सकते हैं, कॉइन्स में ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, जो भी है, गोल्ड में स्पेसिफिक नहीं है। म्यूचुअल फंड का नाम सुना है आप लोग? तो मैं तो वही पढ़ाना था, आप लोग तो पढ़े नहीं है।
अच्छा नहीं तो म्यूचुअल फंड भी इज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या है ना बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, जिसमें आप एसआईपी करते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड खरीद ले रहे हैं और म्यूचुअल फंड जो है गोल्ड ले ले, शेयर ले ले, लेकिन आपको रिटर्न दे दे रहा है। नाउ गवर्नमेंट सेविंग्स कुछ कुछ रहती है, जो बॉन्ड्स बोले अलग अलग तरह का, कंपनी फिक्स डिपॉजिट रहती है, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, इसके बारे में सुना है? एनपीएस कितना लोग कर रहे हैं यहाँ पे? स्कूल की तरफ से भी एनपीएस होती है। तो जैसे क्या होता है ना, एनपीएस आप अपने से भी कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट है, उसमें आप ऑनलाइन रजिस्टर करके 50,000 रुपए तक 50,000 रुपए महीना उसमें जमा कर सकते हैं। तो एनपीएस में क्या है, आफ्टर अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम, मे बी आफ्टर 60 इयर्स ऑफ योर रिटायरमेंट, आपको जो है पेंशन मिलना चालू हो रेट जाएगा। ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा है उसमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा, उसमें भी अलग अलग ऑप्शन है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग जितने चीजें हैं सबके बारे में आगे में डिटेल्स में देखेंगे। ओवर दी लॉन्ग टर्म इक्विटी इज दी बेस्ट बेट। देखिए ये अब दिखा रहे हैं कि इक्विटी कितना, मतलब देखिए मेरा यहाँ पे यही चीज है, मैं जितने भी चीज है सबको आपके सामने ये रख दूं किसका कितना बेनिफिट है, लेकिन डिसीजन आपका है कि इन्वेस्ट किसमें करना। तो यहाँ एक कंपैरिजन इक्विटी का है कि इक्विटी कितना बढ़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इक्विटी ने आपका गोल्ड को और बैंक एफडी को बीट कर दिया है। उसमें यही दिखाया है कि 10 इयर्स के टाइम में गोल्ड में 6% का ग्रोथ है, सेंसेक्स में 16 है और बैंक एफडी में 7% है। समझ में आ जा रहा है कि इक्विटी का कितना पावर है। तो लेकिन मैं जैसे बताया इक्विटी का डीमेरिट भी है, एफडी आपका जो रुपया इन्वेस्ट किया उससे कम नहीं होगा, लेकिन इक्विटी आपका मेन रुपया को कम भी कर सकता है। या ये सेंसेक्स का रिजल्ट है कि 1995 से किस तरह से वो ग्रो किया है। उस समय बोला है कि कोई अगर उस समय 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देता सेंसेक्स में 1995 में, तो आज वो 1 लाख रुपया कितना होता पता है? आज वो होता 18,71,180 रुपीज। तो 18 लाख रुपीज उसका वैल्यू होती अगर कोई 1995 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता। नाउ अगर कोई 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करे इक्विटी में और 20 साल के लिए, तो वो वैल्यू 8.5 लाख रुपया हो जाती है। तो आप ये मत सोचिए कि सर अभी तो मार्केट बहुत हाई है, आप क्या पता 2-4 महीना पहले आते इक्विटी के बारे में बताते तो उस समय मार्केट डाउन था, हम लोग इन्वेस्ट कर देते। तो ऐसा बात नहीं है, इसमें यही बोल रहा है कि मार्केट हाई हो या लो हो, आप अगर रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तब वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ती है। वही दिखा रहा है कि अगर आप बहुत हाई रेट में इन्वेस्ट किए, बहुत कम रेट में इन्वेस्ट किए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत ज्यादा अगर कोई एकदम एप्रोप्रिएट टाइम पे इन्वेस्ट किया तो उसको 11% का रिटर्न मिला, और कोई भी डेज में इन्वेस्ट किया तो उसको 7.4% का, तो मतलब 3-4% का ही वेरिएशन है। ऐसा नहीं है यू आर एट लॉस। नाउ इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, दूसरा आपके पास एक्सपर्टाइज है, आपको कंपनीज के बारे में या तो पढ़नी पड़ेगी कि किसमें इन्वेस्ट करें नहीं करें, क्योंकि ये मार्केट बहुत डायनेमिक है, किस लिए इसमें अप्स एंड डाउन हो रहा है आपको पता नहीं लगेगा। और कंसल्ट अटेंशन। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? अब आते हैं म्यूचुअल फंड में कि म्यूचुअल फंड जैसा आप लोग बोले, आप लोगों को आइडिया है, कोई एक जन बता पाएंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक जन कोई बताइए ना। Sir, if we want to invest some of our money in share, but I don't have any knowledge about share, then we can go through the mutual funds that are also on the market risk, but risk are less. सर म्यूचुअल फंड क्या होता है? मैं आपको बताऊं, आपको बता दिया वो एक इंस्ट्रूमेंट है अदर शेयर्स में इन्वेस्ट करने की जगह। तो ये पूछ रहा हूँ म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड है किसी कंपनी का, उसमें इन्वेस्ट करते या कुछ ले रहे हैं, उसका म्यूचुअल फंड हमने दिया, उसके रिस्क के हिसाब से आप जा रहे हो रिस्क वैसे बड़े म्यूचुअल फंड क्या होता है? इन्वेस्ट करके दूसरे में रियल एस्टेट की अलग अलग जगह पे होते हैं, उसकी जो प्रॉफिट
म्यूचुअल फंड एक्चुअली क्या करता है? मैम एग्रीड है, आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ होता क्या है? Mutual fund is a fund where we invest and that manages our fund in different companies. Yes. We directly don't invest, but we invest via a particular वेरी क्लोज, सर ने बहुत अच्छा बोला है। स्टार्टिंग म्यूचुअल फंड का तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10 रुपीस पर यूनिट। अब उसमें हम लोग जितना भी यूनिट खरीदते हैं वो अलग अलग कंपनी और अलग अलग कैप्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। वो डिटेल्स भी देखिए, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, आप जो बता रहे हैं कि उसकी एनएवी 10 रुपए से चालू होती है और फिर वो बढ़ता है, दैट इज ओके। जैसे इक्विटी, अगर मुझे इक्विटी अगर खरीदना पड़ता है तो मैं जाके डायरेक्टली इक्विटी परचेज करता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई थिंक वी आर अराउंड 50 प्लस, ठीक है, 50 प्लस लोगों को हमें इन्वेस्ट, 50 प्लस हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, हमें लेकिन इन्वेस्ट करना है, तो सब लोग का मैंने 500 रुपया करके इन्वेस्ट करने का, तो 50 लोग जब 500 रुपया दिए तो वो जो वैल्यू बना, वो वैल्यू मान लीजिए मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर हूँ या मैं म्यूचुअल फंड हूँ, तो वो रुपया टोटल मेरे पास आया। मान लीजिए वो कॉर्पस अगर 1 लाख रुपया हो जाती तो 1 लाख रुपया कॉर्पस मेरे पास आया, मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का पूल होके एक अमाउंट एक ऑर्गेनाइजेशन के पास आता है व्हिच हैज द एक्सपर्टाइज ऑन इन्वेस्टमेंट, और वो ऑन योर बिहाफ आई विल इन्वेस्ट इन एनी, सर आप इक्विटी बोले, खाली इक्विटी पे जरूरी नहीं है, मैं या तो रियल एस्टेट में लगा दूंगा, मैं या तो गोल्ड में लगा दूंगा, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दूंगा, मैं जिसमें मेरा मन करे मैं उसमें लगाऊंगा जिसमें मुझे रिटर्न मिले, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड हूँ। मैं अभी म्यूचुअल फंड को ये डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड हूँ कि डेब्ट म्यूचुअल फंड हूँ, आई एम अ म्यूचुअल फंड, कि मैं गोल्ड या मैं प्रोग्राम हैप्पी इन्वेस्टिंग टू एवरीवन, स्पॉन्सरशिप किया उसका फोटो आना चाहिए। अब किसी का अगर क्वेरीज है तो प्लीज क्वेरीज अपना ये पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट यू कैन प्लीज आस्क। मैम किसी का डाउट है तो मैं ये समझूं, किसी को नहीं समझ में आया कि सब समझ में आ गया? लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी नहीं पूछा, मतलब पहले के सेशंस में। मैम आप लोग श्योर है ना, सब कुछ समझ में आ गया? फीडबैक मैम देना है वो देख लीजिएगा। Sir, I would like to ask few things. First thing, that is SIP, that EPF, which is deducted from, that means our salary every month, that is a sort of SIP. So that doesn't depend upon us ki how much we have